Both hands on the center of his chest and just started pushing, hard and fast. I kept doing chest compressions and breaths for about 2 minutes until medical help arrived. After medical help took over, I washed up, had my apron on, and went back to serving coffee. But for the rest of my shift, I wondered how my customer was doing. Later, I found out he was a 66-year-old man named Mike. He survived his cardiac arrest and is doing well. I also found out that most people who witness a cardiac arrest either don't know CPR or are afraid to do it. So, they call 911 and then they wait. Medical help gets there as fast as they can. But in the United States, it still takes an average of 4 to 10 minutes for them to reach someone in cardiac arrest. That means receiving CPR from a bystander is the person's best chance to survive until medical help arrives. It also means any CPR is better than no CPR. My career goal is to be in law enforcement and to do search and rescue. But you don't have to be a medical professional to help save a life. By learning hands-only CPR, you too can be ready to help someone in cardiac arrest. It might even be a friend or a family member whose life is in your hands. On your next coffee break, why not take the time to learn hands-only CPR? What would you do if someone collapsed suddenly in front of you? Although Kirk took action and helped someone he didn't know, you are much more likely to be in a position to save the life of someone you know and love, like a parent, child, spouse, or friend. The skills you learn and practice in this course will help you know when and what to do in an emergency, but also give you the confidence to act yourself. Cardiac arrest can occur without warning or within just a few minutes after symptoms appear, and is often fatal if appropriate steps are not taken immediately. Cardiac arrest does not discriminate and can affect all ages, genders, nationalities, and races. This is why early recognition and immediate cardiopulmonary resuscitation, or CPR, are crucial for survival from cardiac arrest. Welcome to Heart Saver CPR AED, presented by the American Heart Association. An emergency can happen anywhere at any time, and this course will help prepare you for the types of emergencies you might encounter. For information on additional topics not covered in this course, please consult your student workbook. जैसा आपने देखा अभी सीन, ये स्टोरी थी एक लड़के की जो कि किसी होटल में एज ए वेटर काम कर रहा है एंड वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके जा रहा था. दैट टाइम ही रियलाइज कि एक आदमी अनरेस्पॉन्सिव हो गया है कि स्लाउच कर रहा है. अब उसके दिमाग में चलने लगा क्या हुआ, वेदर ये अलाइव है, डेड है, व्हाट हैपेंड टू हिम. देन उसको अपने स्कूल डेज में उसने कभी ये ट्रेनिंग अटेंड करी थी, तो ही स्टार्ट रिकलेक्टिंग दोज आइडियाज कि कैसे क्या करना है. तो उसको वो स्टोरी स्कूल की डेज की ट्रेनिंग याद आने लगी एंड ही बिहेव लाइक दैट कि सबसे पहले उसको उठा के उसने सीधा लेटाया. उससे पहले उसने जो दूसरा आदमी वहाँ पर था उसको उसने कहा 911 पे कॉल करो. अमेरिका में एक स्टैंडर्ड नंबर है 911 जिसके ऊपर कॉल करके एम्बुलेंस, पुलिस सबका कॉमन नंबर है, इट्स इमरजेंसी नंबर. जैसे हमारे हरियाणा में भी एक इमरजेंसी नंबर है एम्बुलेंस का, बट ऑफ कोर्स वहाँ पर सर्विसेज आर क्वाइट प्रॉम्प्ट, यहाँ पर दे आर डिफरेंट हैजल्स. उसने उसको सेटल करा, पेशेंट को नीचे लिटाया और जितनी भी उसकी नॉलेज थी उसके हिसाब से उसने सीपीआर शुरू करा. वही वो दूसरी लेडी ने बताया कि दिस सिचुएशन कैन हैपन टू एनीबडी. घर पे हमारे रिश्तेदार के साथ हो सकती है, घर पे फैमिली के साथ हो सकती है, एयरपोर्ट पे हो सकती है, रोड बस पे हो सकती है, बस स्टॉप पे, रेलवे पे, कहीं भी हो सकती है. तो इसलिए अगर बेसिक नॉलेज है तो जब तक कोई ट्रेन आदमी आएगा तब तक आप उसको मेंटेन कर सकते हैं. We'll go through the skills, how to perform it. बेसिक लाइफ सपोर्ट. और हम किसको देंगे BLS? कोई भी ऐसा पर्सन जो कार्डियक अरेस्ट में है या फिर जिसको चोकिंग हुई है. तो अभी हम CPR के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो कार्डियक अरेस्ट होता क्या है? कार्डियक अरेस्ट में आपका जो हार्ट है उसका पंपिंग एक्शन बंद हो जाएगा. तो जब भी किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें हम 3 साइंस देखते हैं. फर्स्ट साइन क्या है? देयर विल बी नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, वो जो पर्सन है वो बेहोश हो जाएगा. दूसरा क्या है? उसके पास पल्स नहीं होगी. तीसरा ब्रीदिंग नहीं होगी. तो ये तीनों साइंस है जो डिफाइन करते हैं कि पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हुआ है. अब
जब भी किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट होता है, हम एक स्टेप वाइज अप्रोच फॉलो करेंगे ताकि हम उस पर्सन को ट्रीट कर सकें। तो मान लीजिए कि कहीं बाहर सड़क पे कोई पर्सन कोलैप्स हो गया है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप आपका होगा सीन सेफ्टी। आपको सीन सेफ्टी करनी है, यानी कि उस पर्सन को एक सेफ जगह पर लेकर जाना है। आपके लिए भी वो जगह सेफ होनी चाहिए और उस पर्सन के लिए भी सेफ होनी चाहिए। आप उस पर्सन को एक फ्लैट और फर्म सरफेस पे लेटा दोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? अब आपको उस पर्सन का रिस्पॉन्स चेक करना है कि वो जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो वो कैसे आप चेक कर सकते हो? तो इस तरह से आपको रिस्पॉन्स चेक करना है। आपको उस पर्सन के दोनों शोल्डर्स में टैप करना है और टैप करने के साथ साथ आपको चिल्लाना भी है, आप ठीक है, आप ठीक है। अगर उस पर्सन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो अब आपको क्या करना चाहिए? हाँ, हमें पल्स और ब्रीथिंग चेक करना है। तो कौन सी पल्स चेक करेंगे? कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स चेक करने के लिए सबसे पहले लोकेट द ट्रेकिया। ट्रेकिया लोकेट करने के बाद यू हैव टू स्लाइड टुवर्ड्स द ग्रूव एरिया। ग्रूव एरिया में आपको कैरोटिड पल्स फील होगी। अब पल्स और ब्रीथिंग दोनों आपको साथ में चेक करना है साइमल्टेनियसली 5 से 10 सेकंड के बीच में। तो आप पल्स फील करेंगे, साथ में छाती में देखेंगे और साथ में आपको काउंट करना है 1,1000, 2,1000, 3,1000, 4,1000, 5,1000, 6,1000। यानी कि आपने 6 सेकंड के लिए काउंट कर लिया। पल्स नहीं है, ब्रीथिंग नहीं है। अभी आपको क्या करना है? अब आपको CPR स्टार्ट करना है। अब CPR कैसे करना है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका हैंड प्लेसमेंट कहाँ पर होना चाहिए। तो हैंड प्लेसमेंट आपका होगा एट द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम के लोअर हाफ में आपको हाथ रखना है CPR के लिए। तो आपको अपना डोमिनेंट हैंड का हील रखना है सेंटर में एट द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। दूसरे हाथ के साथ आप इंटरलॉक करोगे अपने हाथ को। उसके बाद आपको पेशेंट के पूरा ऊपर आना है, ये आपको लीन फॉरवर्ड और पूरा परपेंडिकुलर होके 90 डिग्री का एंगल बनाना है पेशेंट की चेस्ट के साथ। आपकी जो एल्बोस है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और आपका जो प्रेशर है वो कंधों से आना चाहिए, एल्बो से नहीं। इसके बाद आपको कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप ऐसे कंप्रेशन करेंगे कब तक? यस, यू हैव टू परफॉर्म 30 कंप्रेशन। 30 कंप्रेशन के बाद आप क्या करोगे? 30 कंप्रेशन के बाद आपको ब्रेथ देना है, 2 ब्रेथ देना है, ठीक है? तो 30 कंप्रेशन, उसके बाद 2 ब्रेथ देना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हम CPR दे रहे हैं वो हाई क्वालिटी CPR है या नहीं है? तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है। हाई क्वालिटी CPR का फर्स्ट पैरामीटर है कि आपको एडिक्वेट डेप्थ अचीव करनी है। तो डेप्थ कितनी होनी चाहिए? कितना गहराई से आप प्रेस करेंगे? यस, 1/3 ऑफ द चेस्ट या फिर एटलीस्ट 2 इंचेस और 5 सेंटीमीटर। कम से कम 2 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर तक आपको छाती को प्रेस करना है। दूसरी चीज है कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपका रेट कितना होगा? यस, 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 100 से 130 कंप्रेशन हो जाने चाहिए। देन थर्ड थिंग इज रेशो। रेशो यानी कि कितनी कंप्रेशन और कितनी ब्रीदिंग? 30:2। 30 कंप्रेशन के बाद आपको 2 ब्रेथ देना है। एक और चीज है चेस्ट रिकॉइल। जब भी आप छाती को प्रेस कर रहे हो उसको वापस अपनी पोजीशन में आने देना है। उससे क्या होगा? जो आपका हार्ट है उसकी रिफिलिंग होगी और सर्कुलेशन मेंटेन रहेगी, ठीक है? तो ये थे हाई क्वालिटी CPR के कुछ पॉइंट्स। अब जैसा कि मैंने बोला 30 कंप्रेशन के बाद आपको क्या करना है? 2 ब्रेथ देना है। तो ब्रेथ देने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं। पहला है माउथ टू माउथ टेक्निक। माउथ टू माउथ टेक्निक के लिए आप क्या करेंगे? मेक श्योर कि आपके पास कोई बैरियर डिवाइस हो, जैसे कि कोई गॉज पीस, हैंकरचीफ। सबसे पहले आपको क्या करना है? उस पर्सन का नोज पिंच करना है। नोज पिंच करने के बाद बैरियर डिवाइस लगाकर आपको उस पर्सन का चिन लिफ्ट करना है। चिन लिफ्ट करने के बाद आप अपने माउथ से उस पर्सन के माउथ को सील करोगे। 1, वेट फॉर 1 सेकेंड, 2। इस तरह से आपको 2 ब्रेथ देना है। दिस इज द माउथ टू माउथ टेक्निक। अब दूसरी टेक्निक है, अगर आपके पास पॉकेट मास्क है तो उसके साथ आप कैसे ब्रेथ दोगे? तो ये है पॉकेट मास्क। पॉकेट मास्क का एक नैरो पार्ट है और एक वाइडर पार्ट है।
नैरो पार्ट को आप रिच ऑफ द नोज पे रखोगे, नोज ब्रिज पे आप रख दोगे और एक हाथ से उसको आपको सील करना है। दूसरे हाथ से आप हेड टिल्ट और चेन लिफ्ट करोगे और अगेन आपको वन ब्रेथ फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का पॉज तक देकर दूसरा ब्रेथ 1 सेकेंड के लिए। इस तरह से आप पॉकेट मास्क को यूज कर सकते हैं। देन थर्ड डिवाइस जो कि हम सबने देखा है मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल्स में मिलेगा, दिस इज एम्बू बैग। एम्बू की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। तो एम्बू को यूज करने के लिए आपको हमेशा हेड एंड साइड पे होना पड़ेगा, इसीलिए जब भी 2 लोग हैं तभी आप एम्बू को यूज करोगे। एक पर्सन हेड एंड साइड पे रहेगा और दूसरा कंप्रेशन की जगह पे रहेगा। एम्बू को यूज करने के लिए एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं ENC क्रैम्प टेक्निक। अगेन इसमें भी एक मास्क है, मास्क का नैरो पार्ट आप ब्रिज ऑफ द नोज पे रखोगे, वाइडर पार्ट आप चिन एरिया में रखोगे, सील करोगे विद द हेल्प ऑफ C और E जो आपका है उसके साथ आप एलिवेट करोगे। ये है आपकी EC क्लैम्प टेक्निक। अब इसके बाद आपको एक ब्रेथ देना है, वेट फॉर 1 सेकेंड और फिर दूसरा ब्रेथ। तो इस तरह से आपको एम्बू यूज करना है। मेक श्योर कि आप एम्बू को पूरा स्क्वीज ना करें, एम्बू को सिर्फ हाफ स्क्वीज करना है या फिर जब तक आपको चेस्ट राइज नहीं दिखाई देता तब तक आपको स्क्वीज करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 2 रेस्क्यूअर्स हैं, यानी कि एक पर्सन है जो कंप्रेशन के लिए खड़ा है और दूसरा पर्सन है एयरवे के लिए। अब जो कंप्रेसर है वो बहुत देर तक कंप्रेशन कंटिन्यू नहीं कर सकता अकेले, तो हमें क्या करना होगा, उन दोनों का रोल चेंज करवाना होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स के बाद हमें क्या करना है, रोल चेंज करना है। हर 2 मिनट के अंदर कितने साइकिल हो जाएंगे CPR के? 5 साइकिल्स। 30:2 के 5 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमें रोल चेंज करना है। रोल चेंज करने के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आपको एक दूसरे को इंटरक्रॉस नहीं करना है और आपको लेग साइड पे भी नहीं जाना है, ना ही आपको पेशेंट के ऊपर से जाना है। जब भी आप रोल चेंज कर रहे हो आपको क्लॉकवाइज, फॉर एग्जांपल ऐसे, सपोज फिर से 2 मिनट हो गए, देन फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आपको रोल चेंज करना है ताकि कम टाइम स्पेंड हो और इफेक्टिवली आप रोल चेंज कर सकें। तो अभी तक का हमने एडल्ट पार्ट कवर किया है। कोई डाउट है किसी को? तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे 2 रेस्पिरेटर। सबसे पहला काम है एयरवेज को क्लियर नहीं करोगे, क्या कुछ भी करते हो। टंग अगर अंदर की तरफ मुड़ गई ना और उसने चौक कर दिया, रख दिया, कुछ नहीं करता। पहले मैदान वालों को पढ़ाना पड़ेगा, लगेगा मैदान वालों को पढ़ाना पड़ेगा।